can be represented as set builder form, roster form. In this video, in this lecture, we will study that set can be represented as Venn diagram also. Venn diagram is a pictorial way of representing a set. Now, in this form, universal set is taken in this box form. This is universal set, rectangular box form, and set A is subset of this universal set. So if we take universal set U as 1, 2, 3, 4, 5, 6 and set A is, suppose this is 2, 3, 5, then 2, 3, 5 are the elements of set A, and rest of the elements which are not the elements of set A will be written outside A but inside this universal set, because this universal set is the complete whole set. So we will write as 1, 2, 3, 4 and 6. Now we will study some more operations. If set A is 1, 2, 3 and set B is like 2, 5 and 6, then how we will represent it? These two are sets which has element 2 common. So these two are overlapping sets. So while representing two sets A and B which has something common, then this common element will be written as this A and B, and 2 is here because 2 was common. Rest of the elements of A are written as this, and set B 5, 6. Now have a look. Set A has elements 1, 2, 3, 1, 2, 3, and set B has elements 2, 5, 6. This is 2, 5 and 6. These two are, overlapping sets. So this is the way of representing overlapping sets. Overlapping sets when intersection of the two sets is not equal to null set, right? If we take A is equal to 1, 2 and set B is equal to 5, 6. With reference to this universal set, we are making all the diagrams. So these two sets, as you can see, have nothing common. So these two sets are disjoint sets, 1, 2 and 5, 6. These two sets are, disjoint sets. Disjoint sets are those sets which are nothing common. One more thing, rest of the elements of universal set you will write outside sets A and B, like here 4 was remaining and like here 3 and 4 was remaining elements which we will write outside set A and set B. Now the operation on sets, as we have studied in last video, link of which is given below. How these operations can be represented in Venn diagram, let us study. Suppose we want to show A union B with the help of Venn diagram. A union B, set A and set B. ये दो सेट हैं आपके पास. A union B is this complete region. हम रीजन को शेड कर रहे हैं. A union B is this complete region, and A intersection B, as you know, A intersection B is common part of set A and set B, and common part is the part which A and B both have. So this is the common part which both have. Difference of two sets हमने पढ़ा था. Difference of two sets, that is A minus B. Difference of A and B, A minus B. How this is represented in Venn diagram form? Set A and set B. A minus B represents the portion that only A has. This is A minus B. If you want to represent B minus A, then B minus A will be equal to only portion of B. This is the portion B minus A has.
These are the operations which we can depict with the help of Venn diagram. Now we are going to study a very important relationship between the elements of set A, elements of set B, and elements of A union B and elements of A intersection B. This is N A union B is equal to NA plus NB minus N A intersection B. अब इसको हम समझते हैं वेन डायग्राम की मदद से. And A means number of elements in set A and B means number of elements in set B. This is set A and this is set B, A and B, and this is our universal set, right? Now these are the elements of set A and these are the elements of set B, and A union B means this whole region, all the elements of A and B taken together. आप देखिए कि ये जो पोर्शन है, जब हम एन ए लेते हैं ये रिपीट ये आया, और जब एन बी लिया तो बी आया, यानी इस रीजन का रिपीटिशन 2 बार हुआ. और ये रीजन कौन सा है, जैसा हमने अभी पढ़ा है, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी. इसलिए जब ये हमारा रिपीट होता है एन ए में भी और एन बी में भी, इसलिए हम इसमें इस वाले इन एलिमेंट्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ये एक बार एन ए में भी काउंट हुए और एक बार ये एन बी में भी काउंट हुए. दैट्स वाई दीज एलिमेंट्स आर काउंटेड ट्वाइस. दैट्स वाई वी आर सब्ट्रैक्टिंग दीज एलिमेंट्स. इफ ए एंड बी आर disjoint sets means these two sets have nothing common, then an A intersection B will be equal to 0. So an A union B becomes an A plus an B, right? Let's take an example to understand the result. Let A and B are two sets. That number of elements in set A is 37, number of elements in set B is 26, and number of elements in A union B is 51. Find number of elements in A intersection B. As you know, an A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. So we can mold this expression as कि NA intersection B is equal to NA plus NB minus NA union B. Just take this expression this side and this side. So NA is equal to 37 plus 26 minus 51, 63 minus 51, and your result is 12. Next question. This is a word problem. In a committee, 50 people speak Hindi, 20 speak English, and 10 speak both Hindi and English. How many speak at least one of these two languages? This question we will do by two methods. First is using the formula and second is using the Venn diagram. Venn diagram बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम क्वेश्चंस को वेन डायग्राम की मदद से करें. आगे जाकर आपको कंपटीशन में वेन डायग्राम की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. तो देखते हैं. इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक हिंदी. आपने सेट ए कंसीडर कर लिया. सेट ए उन लोगों का ग्रुप है जो हिंदी बोलते हैं. देन सेट ए, लेट ए इज इक्वल टू सेट ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी. तो सेट तो आपने खाली रिप्रेजेंट करा एक कैपिटल लेटर से. अब एन ए का मतलब है इसमें कितने लोग हैं, तो एन ए मीन्स 50, राइट. सिमिलरली बी आपने सपोज किया सेट ऑफ पीपल हु स्पीक. थोड़ा आपको ये डिफरेंस देखना है कि ए क्या है और एन ए क्या है. एन ए मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए who speak English. Now NB has how many elements, you know? This is 20. 10 speak both Hindi and English. And means intersection.
सो ए इंटरसेक्शन बी में वो लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो हम डायरेक्ट नंबर लिख देते हैं। नंबर हमारे पास है इनका 10। हाउ मेनी स्पीक बोथ लैंग्वेजेस? एट लीस्ट। एट लीस्ट मीन्स यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट यूनियन। एट लीस्ट या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या दोनों भाषा बोलते हैं। दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, सो you are required to find out an A union B. Now अगर आपके पास डेटा कलेक्ट हो गया है, now the very simple, अब तो सिर्फ पुट करना रहता है एन A union B is equal to एन A plus एन B minus एन A intersection B. So एन A is 50 and B is 20 and this is 10. Your answer is 60. तो हमारे पास कमेटी में कितने लोग हुए? देयर आर 60 persons in the committee. This is first method of doing this sum. Let us do second method. Now the second method using Venn diagram method. Let's make Venn diagram. आपने डाटा तो हमेशा लिखना है कि आपको क्या क्या गिवन है, ये तो कंपलसरी है आपके लिए, यूनिवर्सल सेट, राइट? आपको मालूम है कॉमन पोर्शन आपके पास ए और बी का, दिस इज योर कॉमन पोर्शन। आपको जब भी वेन डायग्राम से क्वेश्चन करना है, आपको हमेशा सॉल्व करना है उसको, तो हमेशा कॉमन पोर्शन लेकर करना है। कॉमन पोर्शन में आपके पास कितने लोग थे? 10 लोग थे। अगर कभी ऐसा है कि आपको कॉमन पोर्शन फाइंड आउट करना हो, यानी इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना हो, तो सबसे पहले आप इसको एक्स भी सपोज कर सकते हो अगर आपको गिवन नहीं है। तो आपने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 10 दिया है, तो आपने 10 यहाँ रख दिया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए वॉज 50, 10 आपके पास इधर आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 40, क्योंकि ये जो पोर्शन है आपके पास ये ओनली ए का पोर्शन है। टोटल लोग सेट ए में 50 थे, राइट? अब आपने 10 तो लिख दिया था, तो 40 आप इधर लिखेंगे। सेट बी में टोटल लोग कितने थे? 20। अब इधर इस सेट में पूरे टोटल है 20, 10 आप लिख चुके हैं, तो अब 10 यहाँ आएगा। अब ऐसे कमेटी में कोई भी लोग नहीं है जो ना लैंग्वेज ए बोलते हो, यानी कि ना हिंदी बोलते हो ना इंग्लिश बोलते हो, क्योंकि अगर ऐसे कोई होते तो हम उनको बाहर लिखते, क्योंकि वो ना सेट ए के एलिमेंट होते ना सेट बी के एलिमेंट होते। ऐसा इस क्वेश्चन में कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है। अब हमसे टोटल पूछा गया है, देन एन ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू सिंपली 40 प्लस 10 प्लस 10। आपको मालूम है यूनियन का मतलब होता है टेकन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। आपने ये सिंपल इनको तीनों को ऐड कर देना है एंड दिस कम्स आउट 60. This is the way of doing the sum with the help of Venn diagram. There is a beautiful sum before you, that n a minus b is equal to 24 and b minus a is equal to 19 and a intersection b is equal to 11. You are required to find n a, n b and n a union b. अभी हमने एन ए पढ़ने का तो फाइंड आउट करने का तो कोई डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा नहीं है। लेट अस डिराइव द फार्मूला। हमको गिवन क्या क्या है? ओनली ए के एलिमेंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय ए माइनस बी? ए माइनस बी मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ओनली ए एंड बी माइनस ए मीन्स एलिमेंट्स ऑफ ओनली बी। अब अगर हम इसका वेन डायग्राम बनाएं, जो जो हमें गिवन है, क्योंकि हम बजाय फार्मूला लर्न करने के समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। ऑल्दो सम डायरेक्ट फार्मूलाज आर गिवन इन योर बुक, बट मैंने उनको पिक नहीं किया, ना मैं कभी करती हूँ। मैं आपको हमेशा ही समझाऊंगी कि हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम इन सम्स को कैसे कर सकते हैं। ए माइनस बी कौन सा पोर्शन है? ए माइनस बी इज द पोर्शन विच ए हैज, ओनली ए हैज, राइट? ये आपके पास ए माइनस बी है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना था? एन ए। एन ए क्या हुआ? ये वाला पोर्शन एन ए है, यानी अगर हम a माइनस बी में इंटरसेक्शन को ऐड कर देंगे तो हमें एन ए मिलेगा। यानी आप कह सकते हो एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी। नाउ दिस इज वेरी सिंपल, आपने फार्मूला खुद डिराइव किया है। एन ए माइनस बी इज इक्वल टू 24 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 11. So 24 plus 11, this is 35.
I hope you understand this. Now to find NB, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर हमको NB फाइंड आउट करना है और हमको गिवन क्या है, NB माइनस ए. B minus A is this portion, right? So formula for NB becomes, और B, NB कौन सा रीजन हुआ, NB ये वाला रीजन है, पूरा का पूरा कंप्लीट दिस रीजन इज NB. अब NB कैसे हमें मिलेगा, अगर हम इस पोर्शन और इस पोर्शन को ऐड कर देंगे, यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स और यहाँ के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमें सेट बी के कंप्लीट एलिमेंट्स मिल जाएंगे. आप समझ भी लीजिए और इसको लर्न भी कर लीजिए फिर. एंड बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी. नाउ एंड बी माइनस ए इज, as you can see, this is 19 and A intersection B is 11. 19 plus 11 is 30. Here is your answer. And A union B. अब आप थर्ड पार्ट इसका आराम से कर सकते हैं. Your third part is and A union B, and A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B. You have an A 35 and B आपके पास है 30 and intersection में 11 एलिमेंट्स हैं. 65 minus 11, this is 4 and this is 5, 54. अदरवाइज आप अच्छी तरह जानते थे अगर आप इन तीनों को सिंपली ऐड करेंगे तो भी तो A यूनियन B आ जाएगा. आई मीन ओनली A, ओनली B एंड इंटरसेक्शन वाला पोर्शन. हम इन तीनों को सिंपल ऐड करते हैं, देन टू वी गेट द एलिमेंट्स इन A union B. A very interesting question in front of you. If A and B are two sets such that set A has 3 elements and set B has 6 elements, what can be maximum number of elements in A union B and what can be the minimum number of elements in A intersection B? आप अच्छी तरह जानते हैं फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है अब तक कि N A union B is equal to NA plus NB minus NA intersection B, right? अब अगर आपको इस पोर्शन को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B को मैक्सिमाइज करना है, बात को समझिए. अगर ये मैक्सिमम होना है NA और NB ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, सबट्रैक्ट हो रहा है NA इंटरसेक्शन B, तो जितना इंटरसेक्शन वाला पोर्शन मिनिमम होगा उतना ही NA यूनियन B मैक्सिमम होगा. आप एक बात को समझो, सपोज आपके पास 100 रुपीज है, आप जितना डेली खर्च करोगे उतनी ही तो आपके पास सेविंग ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हो ना सेविंग कितने की इक्वल है. सेविंग इज इक्वल टू हुआ सपोज इनकम माइनस एक्सपेंडिचर. सेविंग इज मैक्सिमम व्हेन एक्सपेंडिचर इज मिनिमम. तो एक्सपेंडिचर मिनिमम कब होगा, अगर एक्सपेंडिचर आपका 0 हो जाए तो आपकी सेविंग और आपका इनकम इक्वल हो जाएगा. इसी पैटर्न पर जितना इंटरसेक्शन आपका मिनिमम होगा उतना ही ज्यादा आपका NA यूनियन B होगा. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B ज्यादा होंगे. अब ये मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है, ये मिनिमम से मिनिमम 0 भी हो सकता है. कैसे 0 हो सकता है, सपोज A और B दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, दे हैव नथिंग कॉमन. इफ A एंड B, तो हम केस 1 पढ़ रहे हैं, यानी कि वी आर फाइंडिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, कि इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स. अगर ये दोनों हमारे सेट्स डिसजॉइंट हैं तो इसका मतलब NA इंटरसेक्शन B हमारे पास है 0. तो NA यूनियन B आपके पास आ गया NA प्लस NB. अब NA में कितने एलिमेंट्स हैं, NA हैज 3 एलिमेंट्स एंड NB हैज 6 एलिमेंट्स. सो 3 plus 6 दिस इज इक्वल टू 9. दिस इज आवर पार्ट 1 की मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B. सेकेंड पार्ट, अब हमें फाइंड आउट करना है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B. एक बार फिर हम फॉर्मूला लिखते हैं और बात को समझते हैं कि हमारे पास NA यूनियन B है NA प्लस NB
माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपके पास यूनियन को मिनिमम करना है, आपकी सेविंग मिनिमम तब होगी जब आप बहुत खर्चा करेंगे, आपका एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होगा, यानी कि ये जो एक्सपेंडिचर है ये आपका मैक्सिमम होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ये मैक्सिमम से मैक्सिमम इंटरसेक्शन क्या वैल्यू ले सकता है। अब आप सोचिए, आप दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं। अब एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है। अब ये तो तभी पॉसिबल है जब सेट ए सेट बी का सबसेट हो। क्यों? क्योंकि अगर सेट ए सेट बी का सबसेट है तो इंटरसेक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए, यानी ए बी के अंदर पूरा का पूरा समा जाएगा। ए विल बी सबसेट ऑफ बी। अगर ये वाला हमारे पास फॉर्म आती है, अगर मैं आपको वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है, तो ये डायग्राम बनता है। आप देखें ना, आप ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, राइट। तो अगर आप कॉमन एलिमेंट्स निकालेंगे, एक फॉर सपोज मैं ले लेती हूँ सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी एंड सेट बी में एलिमेंट्स है ए बी सी ई एफ जी। अगर आप इसे वेन डायग्राम से शो करेंगे तो ए बी सी तो इधर आ गया और ई एफ जी बाहर आ जाएगा सेट बी में। अगर आप देखेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी है, तो अगर हम कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन क्या हुआ, खाली कॉमन एलिमेंट ए बी सी तो हुए। तो इन दी सेम वे इस केस में एन ए इंटरसेक्शन बी होगा 3, राइट। क्योंकि आपको मालूम है बी आपने सुपर सेट ले लिया सेट ए के लिए, ये बात समझने की बात है। अब एन ए यूनियन बी आया, एन ए है आपके पास 3, एन बी है आपके पास 6 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी है 3। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 3 से ऊपर नहीं हो सकती, इट कैन नॉट एक्सीड 3, क्योंकि ए बी का सबसेट है। तो मैक्सिमम कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 ही तो हो सकते हैं। नाउ दिस इज 6, सो एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू 6। हिंदी में आ जाती हूँ। दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज टुडे। आज हमने इस एक्सरसाइज में केवल 2 सेट्स का यूनियन और इंटरसेक्शन थ्रू वेन डायग्राम पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 सेट्स लेंगे जिनको हम वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। टिल देन डू दिस वर्क, वॉच अगेन एंड अगेन एंड बाय बाय।